जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक संविधान सप्ताह का संविधान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और इस संविधान सप्ताह के तहत अलग-अलग विषयों पर पूरे सप्ताह भर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और हर रात 8:30 बजे प्राइम टाइम में इसी संविधान को लेकर अलग-अलग चर्चाओं का आयोजन किया गया है। और इसी कड़ी में जितने भी एनआरआईज है जो भारत के बाहर अलग-अलग देशों में अलग-अलग कंट्रीज में स्थापित है, अपने नौकरी के लिए गए हुए हैं। तो इन एनआरआई लोग भी बेसिकली ये मूल्य निवासी बहुजन समाज के पार्ट एंड पार्सल है। और उनका भी सामाजिक जो योगदान है, सामाजिक स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों का अपना पे बैक टू द सोसाइटी के नाम से एक अलग से उनका योगदान रहा है। तो इन्हीं एनआरआईज के माध्यम से उनके जो विशेष है, खास तौर से इस संविधान दिन को लेकर, ये संविधान दिन का क्या महत्व है, ये संविधान दिन क्यों मनाया जाना चाहिए, या ये संविधान दिन के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज हम सभी एनआरआईज के जो व्यूज है वो हम जानना चाहेंगे। उनके मैसेजेस हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे बीच में काफ़ी अलग-अलग कंट्रीज के अलग-अलग डेलीगेट्स कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम जानेंगे उनसे कि उनके बारे में ये जो संविधान दिन है, ये संविधान दिन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिसेस स्नेहल मंडापे जी, जो दुबई से है। वे संविधान दिन के बारे में अपने जो विचार है वो आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। स्नेहल जी। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनके जन्म के 125वें साल के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली द्वारा इसे लागू किया गया था। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार प्रचार करने के लिए और इसके जो रचनाकार है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इनके विचारों से लोगों को जागरूक करने के लिए चुना गया है। Constitution is not just a book, but it is an inspiration. It is not mere a lawyer's document, but it is for all of us. It reflects indivisible, indestructible, and inseparable portrait of India. It is so great that it defines the whole story in just 3 words, that is, we the people. Constitution of India is a supreme law of India, which lays down the framework that defines political principles, establishes the framework, structures, power, and duties of the government. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar is regarded as the father of the Indian Constitution. Our Constitution starts with a preamble. It is a source of power. The very first line of the preamble, we the people of India, and the last line, adopt, enact, and give to ourselves this constitution, imply that the power lies in the hands of the people. It is on behalf of the people of India that the members of Constituent Assembly framed the Constitution. As it draws the authority from the people hold the ultimate power. Preamble is called as the fundamental letter of the Indian Constitution. It is referred as a preface that highlights the entire Constitution. It is itself a compact summary of the Constitution.
by 42nd Constitutional Amendment in 1976. It is amended only once till now, which determined to constitute India in sovereign, socialist, secular, democratic republic. It secures justice, liberty, and equality to all the citizens of India and promotes fraternity among the people. According to few people, the preamble is the heart and soul of the Constitution because it contains the basic structure and principle of overview of the whole Constitution. But Dr. Babasaheb Ambedkar called the Article 32 of Indian Constitution, that is, right to constitutional remedies, as the heart and soul of the Constitution. It was made so because mere declaration of fundamental rights without an effective machinery for the enforcement of fundamental rights would have been meaningless. And the right without the remedy is a mere worthless declaration. Thus, the framers of our constitution adopted a special provision in Article 32, which provides the remedies to the violated fundamental rights of the citizen. It allows an individual to approach the Supreme Court if that particular individual believes that their rights have been violated or they need to be enforced. So, right to constitutional remedies is the only right that makes rest of the rights effective. So, wishing everyone again a very happy Indian Constitution Day. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहल जी। आपने बहुत सही और विस्तृत तौर पर संविधान दिन का जो महत्व है, पर्टिकुलरली संविधान का जो महत्व है, उसका क्या स्थान है हमारे जीवन में, और हमने क्यों संविधान को अंगीकार करना चाहिए और क्यों संविधान के बारे में सचेत रहना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी हमारे कार्यकर्ताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि संविधान, भारत का जो संविधान है, जैसा स्नेहल जी ने कहा कि इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, और इसका जो प्रियम्बल है, जो बेसिक है इस संविधान का, जो कहता है कि मतलब ये न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर हम मतलब एक ऐसे शक्तिशाली और संपूर्ण भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जो जहाँ मतलब जो हमारे महापुरुष है, जो जिन्होंने कहा था कि हम ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर कोई किसी का बैर ना हो, जहाँ कोई किसी का झगड़ा ना हो, और जहाँ मतलब सभी जो भारत के नागरिक है वो एक दूसरे से एक मानवतावादी विचार के साथ और मानवतावादी सभ्यता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो निश्चित तौर पर संविधान जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दीपक और प्रणाली खोब्रागड़े। ये अबू धाबी से है और ये संविधान के माध्यम से संविधान के ऊपर उन्होंने एक अपना बहुत ही बढ़िया गीत लिखा है, और वो हमारे बीच में वो प्रस्तुत करेंगे। दीपक एंड प्रणाली खोब्रागड़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं दीपक खोब्रागड़े और मैं प्रणाली खोब्रागड़े। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम आपके सामने संविधान पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। संविधान ने हमें समानताओं से जीने का हक दिया। संविधान को मत तोड़ो यारो, इसका सम्मान करो यारो, इसका सम्मान करो। गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाए घूमते थे हम। आज देखो कोट और टाई डाले इतराते हैं हम। भूतकाल फिर से आएंगे, अंधेरे फिर छा जाएंगे। इतिहास को अगर भुला दिया हमने तो क्या वर्तमान और क्या भविष्य रह जाएंगे। लेकिन तब हमें बचाने बाबा साहब फिर नहीं आएंगे। संविधान बाबा साहब का लगाया वह पेड़ है जिसके फल तो बड़े शौक से खाते हैं लोग।
लेकिन वही संविधान को आज जड़ से उखाड़ना चाहते हैं लोग। बाबा साहब का हथियार था कलम, आज वही उठाने से झिझकते हैं हम। बाबा साहब ने कहा था, पढ़ोगे तो ही बचोगे। संविधान ने हमें शिक्षा का समान अधिकार दिया, इस समाज में स्वाभिमान से जीने का हक दिया। संविधान बाबा साहब की विचारधारा सारी दुनिया को बतलाता है। बड़े गर्व की बात है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान निर्माता है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, मिलजुल कर रहो सारे। बाबा साहब का सपना पूरा करो, इंसान बनकर जियो सारे। संविधान कर्तव्यों का अभिनंदन है, अधिकारों का संबोधन है। संविधान से हमें शक्ति मिलती है, जीने की आजादी मिलती है। बाबा साहब ने जो घटना का खजाना हमारी झोली में डाला है, उसे हमें सब में बांटना है। भारत को सुखी और संपन्न देश बनाना है। किसी भी समाज का विकास उस समाज की नारी के विकास पर निर्भर होता है। इसीलिए नारी शिक्षा पर फुले आम्बेडकर ज्यादा जोर देते हैं। आओ हम सब मिलकर बाबा साहब का सपना सच कर दिखलाते हैं। नया धर्म निरपेक्ष भारत बनाते हैं। आओ हम मिलकर अमीर और गरीब की खाई बुझाते हैं, नया सुखी और संपन्न भारत बनाते हैं। सबको शिक्षा का समान अधिकार दिलाते हैं, अपने देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान ने हमें समानता से जीने का हक दिया। संविधान को मत तोड़ो यारो, इसका सम्मान करो यारो, इसका सम्मान करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक और प्रणाली जी। आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब अच्छी कविता लिखी है और एक सही मैसेज अपने कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिया है। आपका MNT न्यूज़ नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कविता के माध्यम से अपने जो विचार है वो यहाँ पे प्रकट किए। इसके बाद जो है मैं डॉक्टर लिनेश खोब्रागड़ी जी को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर लिनेश जी, अगर आप आपका माइक डॉक्टर लिनेश जी दुबई से हमारे साथ में जुड़े हैं, अपने बेटे के साथ में जुड़े हैं। तो ये जो संविधान दिन है, ये संविधान दिन के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत के सभी लोगों को? जय भीम, जय भीम। जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं सम्यक खोब्रागडे और मैं डॉक्टर लिनेश खोब्रागडे wish you all and every citizen of India a happy Constitution Day. A very happy Constitution Day to every citizen of India. A very happy Constitution Day to all of you. We must be proud that we have been gifted with the greatest treasure that imparts us so much happiness that no other things can give. We have taken a great jump forward in the last 70 years, and that is because of the mighty Constitution only. Other countries, they have gradually progressed from the medieval period to the present world. But in our case, it was the greatest leap that centuries were crossed just within 7 decades. Such an amazing power it has. If we want to prosper like the greatest nation, then we have to see how the constitution is implemented completely. This much progress, whatever we are enjoying, is possible when the constitution is not followed in its fullest form. Thanks to the few miscreants who are always working hard against it and try to weaken it. How mighty our country would be if our dear constitution is implemented in its fullest form. This should be the target. This is not just for me or you,
but for all Indians to see the constitution should be effectively implemented and its pillars of social justice, liberty, equality, and fraternity should be made strongest ever. Nobody else, but only our dear Constitution, is going to protect us against the savage life that we have used to live few decades back. The dignity of life, the prosperity, the progress, and all the happiness we are enjoying because of the one and only one, our Constitution, our dear Constitution. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिनेश जी। एकदम सही कहा आपने, सही मैसेज दिया है। आज हम जो कुछ भी है वो संविधान की वजह से है, और संविधान ही एक हमारा आखिरी जो अस्त्र है, जो हमें हमारी आज़ादी से और हमारे जो हक और अधिकार है उससे हमें बचा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज यह जरूरी हो गया है कि इस संविधान को हम अंगीकारें, इस संविधान को हम हथियार के तौर पर अपने लिए उसका जो इस्तेमाल है वो करें, और अपने जो परिवार है और अपना जो ये पूरा मूल निवासी बहुजन परिवार है, इनके हक अधिकार की लड़ाई इस संविधान के माध्यम से हम उसको अंजाम दें। ये बहुत ही मतलब अनिवार्य हो गया है, और दिन ब दिन ये जो संविधान है, ये संविधान जब तक हम घर-घर तक नहीं पहुँचाते हैं, हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचाते हैं, तब तक हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर कांचन भगत जी हमारे साथ में जुड़ी है। डॉक्टर कांचन दुबई से जुड़ी है, और वे हमारे जो भारतवासी है, उन सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपना जो मैसेज है इस संविधान 71वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वो आपके बीच रखेंगे। डॉक्टर कांचन जी। जय भीम। आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। सभी को मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। 71वां संविधान दिवस सभी को मैं बधाई देती हूँ। बाबा साहब, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू अंगीकृत किया था, और उसके 2 महीने के बाद हमने भारत में 26 जनवरी से उसे लागू किया गया था। तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं वो पत्थर हूँ जो पिघलता नहीं, बल्कि नदी की तेज धारा को बदल देता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ, उस समाज की जो विवश गुलामी है, उसका जो अमानवीय अन्याय हो, वो अगर दूर करने में मैं कामयाब नहीं रहा, तो मैं स्वयं खुद का अंत कर दूँगा। यह बाबा साहब के शब्द थे। तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें पुनर्जीवन दिया है। जो वंचित समाज है भारत का, जो कितने सालों से असमानता और गुलामी की जीवन व्यतीत कर रहा था, उनको मानो बाबा साहब ने संविधान सौंप कर जीवन दिया है। और स्पेशली एक स्त्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत की जो स्त्री है, जिस व्यथा से वो बाहर आई है, ये बहुत ही मतलब अडोरेबल मैं इसको कहना चाहूँगी। जैसे हम देखते हैं कि भारत की जो स्त्री थी, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अपना पति चुनने का उसे अधिकार नहीं था, वोट देने का उसे अधिकार नहीं था। तो आज भारत का संविधान भारत की प्रत्येक स्त्री को ये प्रावधान देता है, शिक्षा का प्रावधान देता है, संपत्ति रखने का प्रावधान देता है। तो मैं एक स्त्री होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि संविधान दिवस, भारत का जो संविधान दिवस है, वह हर एक स्त्री, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, हर एक स्त्री ने संविधान दिवस एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर कांचन मैडम। आपने सही कहा कि स्त्रियों के लिए जो विशेष अधिकार है, वो विशेष अधिकार संविधान के माध्यम से ही मिले हैं, और संविधान ने ही स्त्री को जो समानता का अधिकार है, पुरुष के बराबर रहने का, पुरुष के बराबर मतलब समांतर स्तर पर उनको सारे ही अधिकार इस संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, तो अगर कोई मतलब जो
ओवरऑल जो सारे हक और अधिकार के बारे में अगर कोई हनन होता है तो उसके लिए भी बेसिकली ये जो बातें हैं, मतलब स्त्री के लिए जो अधिकार है वो अधिकार जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट संविधान के माध्यम से हुए हैं। तो ये जो संविधान है इसका स्त्रियों के जीवन पे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुमूल्य है और उसका अलग ही उसका अस्तित्व है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय उत्तम वैद्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम वैद्य जी कतार से हमारे साथ जुड़े हैं और वे कतार से हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के सभी साथियों को अपना जो संदेश है इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वो देना चाहेंगे। उत्तम जी। धन्यवाद आशीष जी। मेरी आवाज आ रही सर आपको? यस सर। धन्यवाद for giving me this opportunity to express my views on Constitution. Constitution एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमारे जो जीने का मार्ग है वो एकदम वहीं से मिलता है। मैं मेरी बात एक कवि की कुछ एक दो लाइन बोलकर बोलना चाहूंगा। वो बात करो पैदा, वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में। तो इस पंक्ति में जो बात पैदा करने की जो लेखक ने या कवि ने जो लिखी है वो बात पैदा करने की ताकत हमें संविधान देता है। संविधान में मेनली जो 3 प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैटर्निटी, ये ऐसे 3 प्रिंसिपल्स है, तत्व है। ये 3 तत्वों के द्वारा ही ये कोई भी मनुष्य या कोई भी ह्यूमन बीइंग एक सम्मानित जीवन जी सकता है। मैं लिबर्टी के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। दैट इज राइट टू फ्रीडम। आपको मालूम है कि जो डॉक्यूमेंट संविधान होने के पहले होते थे, या लिखित हो या अनलिखित हो, तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ चुने हुए लोगों को ही अधिकार थे। और इस डॉक्यूमेंट में जो संविधान में जो है ये इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स बिफोर द लॉ। तो इसमें पर्टिकुलरली जो फ्रीडम का जो पॉइंट्स है अगर देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बोलने का अधिकार नहीं था। अगर बोलते थे तो आपकी टंग काटी जाती थी। एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं था। कई जगह अगर हमें इकट्ठा होना है टू असेंबल पीसफुली, वो भी अधिकार नहीं था। खुद का प्रोटेक्शन के लिए कुछ आर्म नहीं रख सकते थे। हमें मतलब अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे। कोई हम यूनियन नहीं बना सकते थे, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक गांव में ही आपको बस वही हद है, वही सरहद है, वहीं पर रुकना है, उसके बाद हम नहीं जा सकते थे। बस आपको एक ही जगह रहना। यू कैन नॉट मूव टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री और यू कैन नॉट मूव अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे अधिकार और इसके अलावा की प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, तो ये सब अधिकार हमें संविधान से मिले। तो अगर ये अधिकार नहीं होते तो एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी नहीं जी सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान है
इसलिए हम इंसान की तरह जी पा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं जी पाते थे। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये डॉक्यूमेंट को साबित रखना होगा और ये डॉक्यूमेंट को बरकरार रखना होगा आने वाले कई दिनों तक, कई पीढ़ियों के लिए वो रहे। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड अगर नहीं रहेगा तो मनमानी होती है, और डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो उसमें आदमी की प्रोग्रेस नहीं होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा आज के दिन पर। और ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह हमारे लिए एक त्योहार है और सेलिब्रेट करने का अच्छा जरिया है। और मैं आ, आ, सभी हमारे जो बहुजन भाई और बहनों हैं उनको मैं एक शुभेच्छा संदेश देता हूँ और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। आपने सही कहा कि ये जो स्पेसिफिकली लिबर्टी का या हमारा मतलब जो हमको अधिकार मिले हुए हैं इस संविधान के माध्यम से, मतलब हम इंडिपेंडेंट काम करने का या इंडिपेंडेंट जीवन जीने का जो अधिकार है वो संविधान के माध्यम से ही मिला है। और संविधान के माध्यम से ही हम हमारे सारे जो कार्य है वो कर पा रहे हैं। अगर संविधान ने हमको अधिकार नहीं दिए होते तो आज भी वही जो मनुस्मृति वाला जो कार्य है या मनुस्मृति का जो राज है वो वैसे ही चलते आ रहा होता और हमें कुछ भी अधिकार नहीं होते। ना शिक्षा का अधिकार होता, ना पढ़ने का अधिकार होता, ना नौकरी करने का अधिकार होता। और अगर ये सारे अधिकार नहीं होते तो आज हम एनआरआई नहीं बन सकते थे। तो बहुत सही कहा आपने। साथियों, इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं शरद दुबई से जुड़े हैं। मैं शरद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपना जो मैसेज है इस संविधान दिन के उपलक्ष्य में वे हम सभी के सामने दें। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। संविधान डे हम क्यों मना रहे हैं और क्यों आजकल हम सुनते हैं कि संविधान बचाओ, क्यों बचाना है? संविधान इसलिए बचाना है, ये नहीं है कि संविधान इसके पहले नहीं थे। जब से लोग यूनाइट होना शुरू हो गए, संविधान तो चल रहा है, लेकिन ये संविधान बचाना है। क्यों बचाना है? ये संविधान इसलिए बचाना है क्योंकि ये हमारा संविधान है। ये संविधान कहता है, ये स्टार्ट होता है इससे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये किसी एक बंदे का, किसी एक समूह का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति का, किसी एक पंथ का, किसी एक धर्म का संविधान नहीं है। ये सभी लोगों का संविधान है और सभी लोगों का संविधान है और इस संविधान को बचाना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर से वही होगा जो एक विशेष समुदाय, विशेष जात के हाथ में ये चला जाएगा, या जो पावरफुल होगा वो फिर से अन्याय करना शुरू कर देगा लोगों के ऊपर। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। इसलिए संविधान बचाना है। क्यों बचाना है संविधान? क्योंकि ये समानता देता है, ये सभी व्यक्ति के मूल्यों का सम्मान करता है। ये अमीर नहीं देखता, ये गरीब नहीं देखता, ये सबके लिए। तो इस दिन पर मैं मतलब इस संविधान दिन पर मैं सब भारतवासियों को, विद इन इंडिया, जो इंडिया के बाहर है, पूरे भारतवासियों को, जो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए, मैं संविधान दिन पर कामनाएं देता हूँ कि इसको याद करें। आज क्यों याद करना है? क्यों संविधान दिन मना रहे? क्यों आशीष जी बोल रहे कि ये सप्ताह है? आज मुझे ये बात समझ में आ रही है जो कि इस सप्ताह को हम मना रहे हैं, कि संविधान दिन एक सप्ताह के रूप में हम जीना चाह रहे हैं, क्योंकि हम याद करना चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि ये हमारा खुद का संविधान है और इसको हमने बचाना है। और ये याद हम घर घर तक, गली गली तक पहुंचाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं कि इसको बचाना है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है इस दिन पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि और ये 4-5 साल से बातें होती थी, फिर हमने भी एक संविधान की कॉपी हमारे घर में ले आए। तो हर बंदे के पास, जो भी ये मैसेज सुन रहा है आज, जिनके पास नहीं है, उन सबके पास में एक संविधान की कॉपी घर पे होना चाहिए, जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ पढ़नी है।
मतलब आज इस दिन पे, आज इस वीडियो पर, आज इस स्क्रीन पर मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि संविधान की कॉपी लीजिए, पढ़िए, समझिए और ज़िंदगी जिए। ये सबका संविधान है, सबको समानता देता है। तो यही मेरा आज मैसेज है संविधान दिन पर सबके लिए। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपने सही कहा। और ये जो संविधान का महत्व है, फिर से आपने दोहराया कि ये संविधान सिर्फ किसी एक अकेले व्यक्ति की प्रपोति नहीं है, बल्कि यह सभी उन भारतवासियों की हक और अधिकार की का ये दस्तावेज है जो हर एक को सुरक्षित करता है और हर एक को पूरी तरह से जस्टिस, लिबर्टी, न्याय और ये जो मूलभूत तत्व है मानवतावाद के, वही मानवतावाद के मूलभूत तत्वों को फिर से उजागर करता है और सभी को ये समान अधिकार देता है। निश्चित तौर पर ये संविधान जो है वो जब घर घर तक जाएगा, संविधान का महत्व जो इम्पोर्टेंट जो है हर घर में इसका महत्व पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर ये संविधान का जो महत्व है या संविधान का इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन खुद हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर करेगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारा ऐतिहासिक स्तर है, जो मतलब बौद्धकालीन व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ मनुष्य मनुष्य के साथ में मनुष्य जैसा ही व्यवहार करता था। और ये जो मानवतावादी व्यवहार है या ये जो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को मनुष्य के साथ देखना, ये जो एक सबसे बड़ी ताकत है, वो संविधान के माध्यम से हम पुनः उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये संविधान को हमको घर घर तक लेके जाने की आवश्यकता है। साथियों, हमारे साथ में दुबई से एक और हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, मोगलन भगत जी जुड़े हैं। मैं उनसे इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मैसेज हमारे सामने रखे। माननीय मोगलन भगत जी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं मोगलन भगत दुबई से। आज का यह विषय MNT न्यूज़ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे खुशी है कि MNT न्यूज़ संविधान सप्ताह मना रही है। सभी को पता है कि संविधान का महत्व क्या है, बट जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये अभी भी मास लेवल पर नहीं पहुंचा है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर ये एक विषय हो स्कूल में, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक, तो शायद उस एज से लोगों को पता चले कि संविधान का अपने देश में क्या महत्व है, किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य ने किसी धर्म या किसी जात का या किसी लेवल के और कई लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए और किस तरह मनुष्य की जिंदगी सफल हो। ये ऐसी गाइड दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हर एक भारतवासियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग और यह चर्चा भी कर रहे हैं कि इसका जतन करना चाहिए ताकि यह आगे की जनरेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो। आज हम लोग जो इस न्यूज़ के द्वारा आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो भारत देश के बाहर आके भी मैसेज दे रहे हैं, ये केवल और केवल संविधान की वजह से ही है। संविधान ने ही हमें यह हक दिया है कि हम अपना एक पासपोर्ट बना सके और देश के बाहर कुछ अच्छी संधि के लिए जा सके और अपना नॉलेज बढ़ा सके। बाबा साहब ने एक बार ये भी कहा था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो मैसेज। उन्होंने कहा था कि अभी राजा रानी के पेट से ही पैदा नहीं होगा, मैंने आपको वोट करने का अधिकार दिया है। वो वोट करने का अधिकार भी संविधान ने दिया है, जो लोकतांत्रिक देश में काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरी सभी से यही विनती है कि इस संविधान को किस तरह मास लेवल पर पहुंचाया जाए, जो मुझे लगता है कि स्कूल से अगर स्टार्ट हो तो यंग एज से ही सभी को इसका महत्व पता चले, ना कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इसके बारे में जानकारी हो। यही मेरा सबके लिए संदेश है। सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोगलन जी। आपने सही कहा है कि इस संविधान का जो महत्व है, वो संविधान का महत्व हर व्यक्ति तक लेकर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान जो है, जैसे ही मतलब संविधान का अंगीकृत अगर हम सभी भारतवासी करते हैं, तो निश्चित तौर पर सही दिशा में एक जो समतामूलक समाज है
या मानवतावादी समाज जो है उसका निर्माण करने की दिशा में पहल हो सकती है। साथियों, इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दुबई से ही माननीय कुमार संजय जी को, जो बामसेफ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रभारी है। वो अपना जो मैसेज है वो हमारे बीच में रखेंगे। डॉक्टर कुमार संजय जी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आज MNT न्यूज नेटवर्क को हम अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं कि ये सप्ताह जो है सो संविधान सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये जन जन तक पहुंचाने के लिए काम आएगा। ये संविधान दिवस जो 26 नवंबर को हम लोग मनाएंगे संविधान दिवस के रूप में, तो ये संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या अभिप्राय है, ये अभी ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। जब हम छोटे थे तब संविधान हम लोग को इतना जानकारी नहीं थी संविधान दिवस मनाने के रूप में, लेकिन आज हम देखते हैं कि संविधान धीरे-धीरे गाँव तक पहुँच रहा है और लोग जो है सो संविधान दिवस को एक अपना पर्व के रूप में मना रहे हैं। एक जो है सो अपना जश्न के खुशियों के रूप में जो है सो मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि घर में जो है सो खुशी का माहौल आ गया है। तो 26 नवंबर को जो है सो संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है, घर-घर में मनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है, माहौल है। और हो भी क्यों नहीं, हमारा संविधान जो है, जब हमें पता चलता है ये अपने भारत देश का, लैंड ऑफ द कंट्री का ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट क्या है? सुप्रीम डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं है। सभी कुछ जो है से भारत के मानव, पेड़-पौधे, पक्षियाँ, जितने भी उस लैंड की चीज़ें हैं, वो सभी उसके अंदर होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी जो है सो उससे ऊपर नहीं है, बल्कि सभी संविधान के अंदर आते हैं और सभी जो है, सभी के सम्मान की बात। भारत का संविधान अगर कहें तो ये हमारा सम्मान है। भारत का संविधान हमारी सुरक्षा है। भारत का संविधान जो है सो हमारा संवर्धन है। भारत का संविधान जो हमारी शान है। तो जिससे हमारी आन बान और शान हो, जिससे हमारी सुरक्षा हो, जिससे हमारी संवर्धन हो, तो आखिर वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए भारत का संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जो हर घर में होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा और डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि सुप्रीम हो। और भारत का संविधान सुप्रीम होने का हमें पता भी चलता है, उसका कारण भी पता चलता है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो फ़ोकस है, वो है मानव का कल्याण। मानव का कल्याण, विज्ञानवाद, किसी तरह का पाखंडवाद, किसी तरह का जो है सो अंधभक्ति, अंधकार और जो चमत्कार नाम की चीज़ इसमें नहीं है। इसमें पूरा-पूरा का विज्ञानवाद है। इसमें जो है सो तत्पर विकास करने की जो है सो बातें हैं। यह संविधान जो है सो युद्ध में और ये जो है सो शांति में, दोनों में जो है सो एप्लीकेबल है। ऐसा संविधान जो है भारत का संविधान, जो सबसे विश्व का बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और इसे माना जाता है कि भारत का संविधान जो है सो बहुत ही बेस्ट संविधान है। इसलिए हम सबको गर्व है कि 26 नवंबर को जो है हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और देश-विदेश में लोग जो है सो इसके साथ गर्वान्वित हो रहे हैं। हम विदेश तक पहुँचे इसी संविधान की वजह से। इस संविधान से पढ़ लिख कर के हम लोग विदेश तक आए और खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने परिवार के साथ में जो है और भी अच्छा जीवन की परिकल्पना कर रहे हैं। इसलिए भारत का संविधान जो है सो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे हम सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो है सो सब कुछ है। इसलिए हमें लगता है कि भारत के संविधान जो है एक सप्ताह के रूप में तो मना रहे हैं, लेकिन ये संदेश देना चाहते हैं कि इसे जो है सो हमें हर अवसर पे अपने मनाना चाहिए। चाहे हमारे घर में शादी हो, चाहे हम गृह प्रवेश करते हों, चाहे हम हैप्पी बर्थडे मनाते हों, चाहे मृत्यु दिन के रूप में भी कोई आता है। तो इन सभी अवसरों पे, क्योंकि ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट है, तो जब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो हमें ऐसे मौके पे जो सबसे खुशी का मौका होता है, उस मौके पे हम सबको जो है इस डॉक्यूमेंट के साथ में जो है सो अपनी जीवनचर्या को मनाना चाहिए, अपनी खुशी का जो है इज़हार करना चाहिए
और इसे पढ़ना चाहिए। इसमें जो हमारे हक अधिकार दिए हुए हैं, इसमें जो हमारे विकास के सब चीज़ें जो विज्ञानवाद दिया हुआ है, इन सभी को जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो इसमें कितनी भी अच्छी बातें दी हो वो हमें मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम सभी भारतवासियों को चाहिए कि इस सुप्रीम डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो जहाँ भी मिलती हो, अगर आप खुद से नहीं ग्रहण कर सकते, खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आस-पास पड़ोस में जहाँ भी संविधान की चर्चा हो, जहाँ भी संविधान की बात हो, हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें जो है सो सुनना चाहिए और उसे हासिल करके और हमें जो है सो आगे बढ़ने का प्रण करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो हर हाल में जब संविधान हमारी सुरक्षा देता है, तो हमें भी अपने संविधान को अंतिम दम तक जो है बचाने का संकल्प लेना चाहिए। तो ये जो है सो 26 नवंबर जो है सो इस रूप से हम देखते हैं कि हमें जो है सो अपने संविधान को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ हम सभी देशवासियों को, देश-विदेश में रह रहे सभी भारतवासियों को हम जो है सो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय। जो आज का जो संदेश है संविधान दिवस के इस उपलक्ष्य में वो हमारे सामने रखेंगी मेघा। जय भीम सबको। मैं मेघा दुताले दुबई से आप सबको संविधान दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, जो आज हम ये पोजीशन पे है या जो हमने आज अचीव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के वजह से ही है। तो सबको रिक्वेस्ट है, सभी इंडियंस को, सभी भारतीयों को जो आज पूरे दुनिया में है, कि इसे प्रोटेक्ट करें और इसे इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ ही मैं आप सबको वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। मैं वैशाली जीवने अबू धाबी से संविधान दिन के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमें जो भी हक और अधिकार मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिले हैं। संविधान के माध्यम से ही भारत में न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का जो निर्माण है वो किया जा सकता है। आइए संविधान को घर घर लेकर जाने का हम संकल्प करते हैं। पुनः एक बार संविधान दिन की बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ। विश यू ऑल हैप्पी 71st कॉन्स्टिट्यूशन डे। जय भीम।